सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਫਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤਿਰੰਗਾ ਬਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ जानबूझकर उनको अंदर बाड़ा गया। ये मोदी के साथ इसकी तस्वीरें भी वायरल हो चुकी है। पहले तो ये पगड़ी नहीं बांधता था, लेकिन किसानों के अंदर ये पगड़ी बांधकर उनके बीच में बैठा। मैं एक नौकरी करता हूं, लेकिन फिर भी मैं किसानों के साथ जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं किसानों के साथ खड़ा रहूंगा। तिरंगा किसने उतारे? वहाँ किसी ने भी नहीं उतारा। जितने भी है ना आरएसएस के बंदे, बीजेपी के बंदे, उनकी हिस्ट्री निकाल लो। देश के लिए उन्होंने क्या किया आज तक? अच्छे दिन के नाम पर हमारी महंगाई से हमारी कमर तोड़ी जा रही है। नोटबंदी पे नाम पर हमें बेवकूफ़ बनाया गया। जीएसटी के नाम पर बेवकूफ़ बनाया गया। आप हमारे को बांटने की कोशिश कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांटने की कोशिश कर रहे हो। छब्बीस जनवरी ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਵਿੱਚ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੱਸ ਦੀ ਟੀਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਔਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਜੋ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਮੱਦਭਾਗਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ, ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਮੱਦਭਾਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਫਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਬਾਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਝੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤਿਰੰਗਾ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਧਰਤੀ ਲਈ ਸਦਾ ਲੜੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ 101%। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾफ़ नहीं करनी। 26 को जो लाल किले की तरफ ट्रैफिक मोड़ा गया, क्या ये पुलिस उनको भेज रही थी या किसान अपने आप ही चले गए? ये पुलिस का ये सोचा समझा हुआ, मतलब इनका ये एक प्लान था, ये सोचा समझा प्लान था।
क्योंकि जो रिंग रोड था, रिंग रोड सीधा जा रहा था और वहां से एक रोड, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि हम जगह 5 मतलब एक ट्रैक्टर मतलब 5 मिनट खड़ा हो गया, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा था, जनता को जल्दी होते। लेकिन जो सिद्धू ने उस रास्ते को डाइवर्ट किया, जो लाल किले की ओर डाइवर्ट, और जानबूझकर वहां पे बैरिकेड लगाने चाहिए थे, वहां पे इन्होंने बैरिकेड नहीं लगाए। बैरिकेड इन्होंने लाल किले के बिल्कुल पास लगाए, जो कि जब जनता वहां पे पहुंच चुकी थी। और इन्होंने देखो, आज तक लाल किले के अंदर एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, और इन्होंने जानबूझकर उनको अंदर बाड़ा गया। ये मोदी के साथ इसकी तस्वीरें भी वायरल हो चुकी है। हफ्ते पहले इनसे बात भी हो चुकी है सिद्धू की, जब तक पहले तो ये पगड़ी नहीं बांधता था, लेकिन किसानों के अंदर ये पगड़ी बांधकर उनके बीच में बैठा। ये 1.5 महीना उन्होंने उसके साथ प्रोटेस्ट किया। इनकी सोची समझी साजिश थी ये मोदी सरकार की। और मैं मोदी सरकार बता देना चाहता हूँ, अब दुनिया समझ चुकी है। हम भी एक किसान है गांव में, हम यहाँ पे रोजी कुर्जी कमाने के लिए आके, हमारे पास इतने खेत नहीं है कि जो कि हम मतलब अपने खेतों से ही गुजारा कर सके। लेकिन मैं एक किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है कल को हमारी नस्लें हमसे पूछेंगी कि हमने क्या किया, पापा तुमने क्या किया। बस जब देश में किसान लड़ाई लड़ रहा था तो मैं क्या कर रहा था। मैं एक नौकरी करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं किसानों के साथ जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं किसानों के साथ खड़ा रहूंगा, कंधे से कंधे मिलाकर। और टकैत की ये जो लड़ाई है, इसको हम खत्म नहीं होने को जीत कर ही हम सांस लेंगे। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ है ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਭਟਕ गए? देखो जी, इस चीज़ में राय तो दोनों ही है। अब वही भाई साहब ने जैसे बताया था भी जब रास्ता बंद है, जहाँ लाल किले में एक चिड़िया भी नहीं जा सकती, कि वहाँ लोग कैसे बढ़ गए एकदम। तो दूसरी बात, एक लाखों की भीड़ है। और मैं चाहे मैं भी हूँ, उसमें कोई भी है, जहाँ 4 बंदे जाएंगे बाकी भी उनके पीछे पीछे जाएंगे ना, नॉर्मल सी बात है। अब जो बंदे आगे थे, चाहे उनकी साजिश हो, चाहे वो नॉर्मल गए हों, पर सरकार ने कोई बैरिकेड कुछ नहीं लगवाया, सीधे गए और जितने बंदे उनके पीछे है वो आगे। अब ये रही बात दंगे की। पहली बात, जो सरकार फैला रही है, तिरंगा किसने उतारे वहाँ? किसी ने भी नहीं उतारा। जो सिर्फ मीडिया में, जी न्यूज़ टीवी पे हम जो भी देख रहे हैं, सिर्फ ये दिखा रहे हैं भी वहाँ तिरंगा उतार के लगा दिया खालिस्तान का झंडा। और दूसरी बात, बीजेपी वाले जहाँ भी आते हैं उनका सबसे मेन मुद्दा है ये तिरंगा। कल यूनिवर्सिटी में रैली हुई बीजेपी वालों की, जिन्होंने कहा ये हमारा तिरंगा है, ये नहीं बदलेगा, देश का तिरंगा ही रहे। उन्होंने क्या रजिस्ट्री करा रखी तिरंगे की? हमारा तिरंगा नहीं है कि किसानों का तिरंगा नहीं है, बीजेपी वालों का तिरंगा है। उनके जितने भी हैं ना आरएसएस के बंदे, बीजेपी के बंदे, उनकी हिस्ट्री निकाल लो, देश के लिए उन्होंने क्या किया आज तक। दिनेश जी हैं और ये भी एक किसान हैं और ये चंडीगढ़ में नौकरी करते हैं। और दिनेश जी यहाँ आंदोलन में खड़े हैं, तो इनसे पूछते हैं कि आज ये आंदोलन में आए क्यों हैं। दिनेश जी, आज ये आप आंदोलन में क्यों आए हो? जी, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, और मैं भी किसान का बेटा हूँ, और मैं चंडीगढ़ में अपने परिवार का रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ। लेकिन हमारे खेत अभी भी हैं। मैं किसान का दर्द समझ सकता हूँ। मैं आपको सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ, मोदी जी को हमने क्या, पूरी दुनिया ने, पूरे भारत ने जिताया था, चुना था कि भाई हमारे देश का भला होगा, हमारे अच्छे दिन आएंगे। लेकिन क्या हुआ, हमारे को बार बार बेवकूफ़ बनाया गया। अच्छे दिन के नाम पर हमारी महंगाई से हमारी कमर तोड़ी जा रही है। नोटबंदी के नाम पर हमें बेवकूफ़ बनाया गया, जीएसटी के नाम पर बेवकूफ़ बनाया गया। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है कि पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया है। गैस को ही देखो, गैस सब्सिडी के नाम पर 50-50 रुपये बढ़ जाते हैं। आज 750-800 रुपये का सिलेंडर होने को हो गया है। आपने आम आदमी की रसोई पर डाका मारा है। इसकी आप बात नहीं करोगे, लेकिन आप बात करोगे तो धर्म की बात करोगे, हिंदू की बात करोगे, मुसलमान की बात करोगे, आप राम मंदिर के नाम पर बांटोगे। लेकिन अब ये जनता जाग चुकी है, आपकी ये बातों में नहीं आने वाली है। और अब हद पार करने के बाद किसानों के ऊपर इन्होंने अपना ऐसा कानून थोपा है कि किसान बेचारे कहीं के नहीं रहे। किसानों को इन्होंने षड्यंत्र रच रच के उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और मोदी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जनता अब जाग चुकी है। वो किसी भी हालत में अब आपके बातों में आने वाली नहीं है। आपका नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन आपकी मोदी सरकार विफल हुई है। और आपने जो षड्यंत्र रचा है राकेश टिकैत के वहाँ पर किसानों के पास जाकर उनको फंसाने के लिए, और आपने जो अपने आदमी भेजकर लाल किले पर जो निशान साहिब का झंडा फहरवाया है, वो आपकी चाल समझ गई है जनता कि जो आप उसको बता रहे हो खालिस्तानी झंडा है। अरे उस पटके को तो आपने सर पे बांधा था। अपने गुरुद्वारे में जाते हो तो आप सर पे बांधते हो। 26 जनवरी की परेड में उस निशान साहिब के साथ हमारे फौजी जवान परेड में शामिल होते हैं और बॉर्डर पर उसको बड़े शान से लहराते हैं, और आपने उसको खालिस्तानी झंडा बता दिया। आप हमारे को बांटने की कोशिश कर रहे हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांटने की कोशिश कर रहे हो। ये हम आपकी बात समझ गए हैं कि आप फूट डालो और राज करने की पे कायम कर रहे हो। और आप
ये जनता आपकी इस बात से तो बहुत ज़्यादा खफा है कि आपने किसानों के ऊपर जिस तरह से मारधोड़ कर रहे हो, उनको मारा जा रहा है, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वो किसान किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगी और जनता उसको नहीं बर्दाश्त करेगी। बाकी हुण आने वाला वक्त दसेगा कद तक ये सरकार कानून वापस लैंदी है या कोई ऐसा समझौता करती है किसानां नाल जिहदे विच किसानां दी सहमति हुंदी है और किसान अपना धरना चकदे ने। ये हुण आने वाला वक्त दसेगा। सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न दा। नेशनल बज़ पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।